Hello students, today I am going to take the remaining word problems of class 10 from the chapter linear equations in two variables, that is solving the pair of linear equations in two variables. In the last video I took three different cases and here I have written already, the questions are written on the board, that is problem related with the charges, work done and upstream and downstream. The similar type of questions are given in the textbook. So here I'll be going to take these type of word problems where if I take the first one, this is regarding the charges, that is charges which we have to pay when we are going for a trip on a taxi. It is similar to the lending the book from the library or the hostel charges questions. ये दोनों सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसी से लिंक करते हैं. चलिए यहाँ पे इसको पढ़ते हैं. ये क्वेश्चन क्या है? यहाँ लिखा हुआ है the taxi charges of a city consists of a fixed charge and the charge of the distance covered, that is जितना भी distance cover करोगे वो भी पे करना पड़ेगा और एक फिक्स चार्जेस तो है. जैसे हम लोग कहते हैं टैक्सी में बैठने के 10 रुपए हैं और जितना ट्रैवल करोगे उसके हिसाब से आपको पैसे देने हैं. तो which is given here, that is for a distance of 10 kilometer the charges paid is 105 rupees. And whereas if we cover a distance of 15 kilometers, the charges are given 155 rupees. So what we have to do, we have to find the fixed charges and the charge per kilometer. And after that, one additional question is given: how much does a person has to pay for traveling a distance of 25 kilometer? चलो एक बार इसको ट्राई करते हैं. हम लोग क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है. जब हम लोग कहते हैं कि हमने 10 किलोमीटर कवर किया, तो इसका मतलब हमने पर किलोमीटर जो भी चार्जेस हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल इफ इट इज ₹5, देन फॉर 1 किलोमीटर आई हैव टू पे दिस, फॉर 2 किलोमीटर इनटू 2, फॉर 3 किलोमीटर्स इनटू 3, फॉर 10 किलोमीटर्स इनटू 10, दैट इज 50 रुपीस आई हैव टू पे टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर. उसके अलावा फिक्स चार्जेस तो हैं. तो हम लोग ऐसे में क्या कर सकते हैं कि वन फिक्स चार्जेस, लेट अस से दिस इज द फिक्स चार्जेस, this you have to pay, along with this you have to pay the amount जितना आपने ट्रैवल किया. तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, हम लोग यहां पे ले सकते हैं फॉर द सॉल्यूशन let the fixed charges be rupees X and charges for each किलोमीटर, हर किलोमीटर के कुछ फिक्स चार्जेस हो गए तो उसको हम लोग y मान लेते हैं. जैसे मैंने पहले बताया था 5, तो 5 2 किलोमीटर के हो गए 5 into 2, 3 किलोमीटर के 5 into 3. अब अगर वो फिक्स चार्जेस y हैं तो 10 किलोमीटर के कितने हो गए y into 10. तो हम लोग यहां कह सकते हैं टू कवर 10 kilometers, to cover 10 kilometers. So what we have to pay? We have to pay the fixed charges and charges for 10 kilometer. Clear? So this is the idea that you have to keep it in mind. So what is the fixed charges? X, and the charges for each kilometer is y. For 10 kilometer it becomes 10y, and this cost is already given as 105. In the same way, when we go for, that is to cover 15 kilometers, I think here it is given 15 kilometers. To cover 15 kilometers, so we will be going to pay the fixed charges और 15 किलोमीटर के, हर किलोमीटर के y रुपीस हैं, 15 किलोमीटर के 15y हो गए. तो कितना हो गया? The total cost is given here, that is the charges paid is 155. दोनों को सॉल्व कर रहे हैं. So we are having two very simple linear equations. इनके दो वेरिएबल तो ऑलरेडी इक्वल हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई भी. तो आसान हमें यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लग रहा है. So I will be taking these two equations. So what we will do, since the signs are same, so we are subtracting. That is subtracting first equation from second equation. बड़ा आसान है. ये हो जाएगा x plus 15y is equal to 155 and x plus 10y is equal to 105. So just change the sign. We will be changing the sign. This will get cancelled. ये बच गया हमारे पास 5y, 155 minus this one, it becomes rupees 50.
This is 50. So y becomes 50 upon 5. We are getting 10. That means charges for each kilometer is rupees 10. Now putting y is equal to 10 in any one of the equation. Let us say in one. First equation में रख देते हैं. So x plus 10 into 10 is equal to 105. This becomes x plus 100 is equal to 105. X becomes 105 minus 100. It is equal to 5. So we can say therefore fixed charges is rupees 5 and charge for each kilometer it is rupees 10. क्वेश्चन यहां छोड़ना नहीं है क्योंकि इसके आगे एक लाइन और दे रखी है, हाउ मच अ पर्सन हैज टू पे टू कवर 25 किलोमीटर. नाउ टू कवर 25 किलोमीटर्स, 25 किलोमीटर और कवर करने के लिए क्या पे करना पड़ेगा? फिक्स चार्जेस प्लस 25 into y. So this becomes fixed charges is rupees 5. So it is 25 into 10. It becomes 5 plus 250. This becomes 255. So your answer is rupees 255 is to be paid to go 25 kilometers. So ये हो गया हमारा first word problem. Now when we take the second one, I think this one is clear to you now. When we go to the second format, second one is a bit interesting. इससे पहले मैं थोड़ा इसको समझा दूं कि हम लोग यहाँ यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं. एक बड़ा सरल तरीके से आपको मैं यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ. प्रॉब्लम है वर्क डन, दैट मींस हियर इट इज गिवन 2 women and 5 men together can finish the work in 4 days, whereas 3 women and 6 men can finish the work in 3 days. Find the time taken by 1 woman and 1 man alone to finish the work. अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ. जैसे मान लीजिए हमारे पास वी आर हैविंग अ कंटेनर जिसमें मिल्क है, ठीक है. ये पूरा मिल्क जो है आप लोग 4 दिन में खत्म करते हो, ठीक है. तो मैं आपसे पूछूंगा एक दिन में कितना खत्म होगा? तो डेफिनेटली हम लोग कहेंगे इन 4 days वी ड्रिंक 1 tub. लेट अस से 1 tub ऑफ जूस, कंटेनर कुछ भी ले सकते हैं हम लोग. तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 1 tank. So definitely if we go with 1 day, it will be for, that is in 1 day you will be able to finish 1/4 of the tub. ये एक सिंपल सा यूनिटरी मेथड है. एक किताब 10 दिन में पढ़ते हो तो एक दिन में 1/10 ही पढ़ पाओगे. एक किताब 2 दिन में खत्म करते हो तो एक दिन में आधी खत्म होगी. ये हाफ कैसे आएगा? इट्स अ यूनिटरी मेथड. We take it to the denominator. In the same way, when we say, let us take it in that way, let the number of days taken by a woman to finish the work be x days. अब इस लाइन को हम लोग यूं कह सकते हैं, in x days one work is completed. तो मैं इसी लाइन को वापस अब समझाने के लिए यूं भी कह सकता हूं, let a woman takes how many days? X days to finish one work. Clear? This is the concept. So definitely हम लोग यहां पे क्या कह सकते हैं? This implies in 1 day how much work is completed? So in 1 day 1/x work is finished. Isn't it? अगर हम लोग कह रहे हैं x डेज में एक काम खत्म होता है तो एक दिन में कितना होगा? 1/x. जैसे हम लोगों ने समझाया था कि 4 दिन में आपने एक टम्बलर खत्म किया है तो एक दिन में 1/4 आएगा. तो वैसे ही ये वाला था. And let a man takes y days to finish one work. अगर ये एक काम आदमी y डेज में खत्म करता है तो एक दिन में कितना खत्म होगा? 1/y. तो हम लोग कह सकते हैं this implies in 1 day only 1/y work is finished. थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए मैं यहां लिख देता हूं finished
by one woman, ये by one man। अब ये हमारे पास दो ऐसी स्टेटमेंट है जो क्लियर हो चुकी हैं। अब इन्होंने क्या बोला, कितने आदमी लगाए, 5। वुमेन्स कितनी है, 2। अगर एक वुमेन 1/x कंप्लीट करती है तो फॉर 2 वुमेन्स, सो विल बी गोइंग विद केस नंबर 1। सो वी हैव टू टेक 2 वुमेन and 5 men. They finish in 4 days. तो बेटा एक दिन में काम कितना खत्म होगा, 4 डेज में अगर काम खत्म होगा तो एक दिन में 1/4। तो काम हम लोग ले रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्या चला रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर 1 डे। हम लोग एक दिन का काम चेक कर रहे हैं। तो एक दिन के काम में 2 लेडीज का काम हो गया, दैट इज वुमेन, प्लस 5 men, 1/y। They will be able to finish only 1/4 of the work, है ना। एक दिन के काम पे हम लोग चलेंगे। तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। अगेन केस नंबर 2, when we go, then the case number 2 we are having 3 women and 6 men. So 3 women and 6 men, they are going to finish in how many days, 3 days. अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे इसको आप लोग चाहे लिखो या ना लिखो, आपके दिमाग में ये होना चाहिए। इन द सेम वे द सेकंड स्टेटमेंट आल्सो। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल बी गोइंग टू मेक द सेम टाइप ऑफ इक्वेशन। 3 वुमेन्स कितनी है, 1/x, 6 men, so it is 1/y। दे आर गोइंग टू फिनिश इन 3 days। तो एक दिन में कितना काम खत्म होगा, 1/3। सो विल टेक 1/3। So this is our second equation। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। As dear student, हमारे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में रिड्यूसिबल फॉर्म है, तो ये रिड्यूसिबल फॉर्म का क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे एक सपोजिशन कर रहा हूँ। Let 1/x be taken as and 1/y be taken as। अब ये क्या ले रहे हैं हम लोग इसको मान रहे हैं u और v। ये सब्स्टिट्यूशन आप लोग इसमें जरूर अप्लाई कर दें, ताकि हमारी इक्वेशंस क्या बन जाएंगी। फर्स्ट इक्वेशन विल नाउ बी रिटन एज 2 1/x की जगह u, तो दे बन गया 2u, 5v is equal to 1/4। एंड इफ यू वांट टू टेक द एलसीएम हियर, 4 का एलसीएम लेना चाहते हो ले लीजिए। ये अपने पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, so we'll be going to get, if you take the LCM of 4, this becomes 8u and 20v is equal to 1। Let this be the third equation। And the second equation will now be written as second equation ये रही, तो 3u plus 6v, and when you take the LCM of 3, that is 3 on the other side, this becomes 9u and 18v is equal to 1। Let this be the fourth equation। Now we have to solve these two equations to get the result। Now इसके लिए आप लोग एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो आपको अच्छा लगे वो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जैसे हम लोग यहाँ ट्राई करते हैं, लेट अस गो विद सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए आप लोग एक तरफ से वैल्यू निकाल सकते हो, एलिमिनेशन के लिए आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा मेथड लगाते हो। जैसे मैं यहाँ पे भी चल रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेक द एलिमिनेशन मेथड। दैट मींस okay, we can take the substitution also। From the third equation we can write 8u to be equal to 1 minus 20v, so u becomes 1 minus 20v upon 8। So we are substituting u in, so from third I am putting in fourth, so ये बन जाएगा 9u, u is 1 minus 20v upon 8 plus 18v is equal to 1। इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। so 9 minus this becomes 180v। now take the LCM of 8, you can take the LCM of 8 directly here, so this becomes 8 8 64 and 6 we are having 144v, that is equal to 1। so this becomes 9 minus, if you subtract, this becomes 6 and we are left with 3, 36v is equal to 8 will go to that side, so ये हो जाएगा minus 36v is equal to -1। so we can check here that v becomes -1 upon -36, which is 1 upon 36, and we know that this v is nothing but 1 upon y, so we are having 1 upon y। यहीं से हम लोग इसको कंप्लीट कर देते हैं। this implies y we are getting 36। in the same way substitution is already done, u हम लोग कर चुके हैं। now putting v in, हम लोगों ने फोर्थ में रखा था, वापस थर्ड में रख सकते हैं आप लोग। ये क्या बन जाएगा,
u becomes 1 minus 20 v is 1 upon 36 whole divided by 8. इसको थोड़ा सा आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिए. We know the table of 4, 5 and this becomes 9. Take the LCM. 9 minus 5 whole divided by 9. Already 1 upon 8 in the denominator. ये हो जाएगा 4 upon 9 and 1 upon 8. इसको कैंसिल आउट कर दिया 2. This becomes 1 upon 18. That means what was u? U was 1 upon x. So this is 1 upon x. So this implies the value of x is 18. तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं therefore one woman takes how many days? X days. X कितना आ रहा है? 18. So 18 days to finish the work. And one man takes 36 days to finish the work. तो ये हमारा एक रिड्यूसिबल फॉर्म का क्वेश्चन था जहां पे हम लोगों ने यूनिटरी मेथड से हम लोगों ने चेक किया. अब आप देखें when you go with the last one, so this is there with you, you can make a note of this. And last category जो हम लोग आज लेने वाले हैं वो है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम. तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम होता क्या है. फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ स्ट्रीम गोइंग ऑन, स्ट्रीम मींस पानी बह रहा है और पानी की डायरेक्शन इस तरफ की दे रखी है. क्लियर? तो पानी का एक तरफ बह रहा है एंड योर बोट, इफ द बोट विद द सेल और व्हाटएवर, कोई भी नॉर्मल सी बोट है, इफ इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, यानी पानी के बहाव के साथ जाना, इसे हम लोग कहते हैं डाउनस्ट्रीम. अब इसमें होता क्या है, let the speed of this particular boat be x and the speed of the stream is given y. एग्जांपल ले रहा हूं मैं. अगर इस बोट की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर और आप पानी के डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आप 10 की स्पीड से नहीं जाओगे, 10 plus 2 यानी कि 12 हो जाएगा. So when we are going downstream, it becomes 10 plus 2. And when the another boat is coming on the other side like this, it is coming on this side with the sail. मैं sail भी कुछ ऐसे भी बना दे रहा हूँ. तो just a person is sitting over here and coming in this direction. तो इस डायरेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? अपस्ट्रीम. So during upstream the speed will be reduced. आपकी स्पीड है 10, पानी आगे से आपके अपोज कर रहा है with 2 किलोमीटर पर आवर, तो हमारी स्पीड हो जाएगी 10 minus 2. तो ये कॉन्सेप्ट है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का. हमारे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अ मोटर बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स. 7 घंटे में कवर किए जाते हैं. एंड वेयर एज इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न्स इन 5 आवर्स. सो लेट अस चेक दिस क्वेश्चन नाउ. अगेन हियर द स्पीड गिवन एग्जांपल लिया था वो 10 और 2 लिया था. यहाँ पे हमारे पास है नहीं. वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, खड़े पानी में उसकी स्पीड कितनी है, और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दैट इज द करंट. इनकी स्पीड क्या होगी? तो मैं इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए व्हाट वी कैन टेक हियर, लेट the speed of the boat in still water be x kilometers per hour and speed of the stream be y kilometers per hour. मैंने एग्जांपल में इसको 10 माना है और इसको 2 माना है. इसी डायग्राम को आप ध्यान में रखते हुए we can write this thing that this implies speed in downstream. So when we go downstream, it becomes x plus y kilometers per hour. When we take, now this implies again the speed in upstream, it becomes x minus y kilometers per hour. So this is what we are having for this particular concept, that is upstream और downstream में ये speed हो गई. अब हम लोग जानते हैं the formula for the time is distance upon speed. अगर याद ना रहे तो आप लोग इस फॉर्मूले को याद भी कर सकते हैं. एक आसान तरीका बताऊं, कोई भी स्पीड आप लोग देखोगे किलोमीटर पर आवर में लिखी होती है. तो अब यही समझ लो स्पीड कैसे दी है, किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर तो डिस्टेंस होता है और आवर होता है टाइम. तो यहां से आप इसको डेवलप कर सकते हो. सो केस नंबर 1,
तो केस नंबर 1 क्या है, वी हैव टू गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, सो द टाइम फॉर अपस्ट्रीम, फर्स्ट वी टेक डाउनस्ट्रीम, फॉर डाउनस्ट्रीम व्हाट इज द डिस्टेंस गिवन 30, तो टाइम निकालना है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड कितनी डाउनस्ट्रीम की x + y, एंड द टाइम फॉर अपस्ट्रीम, sign for upstream but we are covering 28 kilometers, so 28 upon x minus y, so ये दोनों हमारे पास टाइम्स हैं in hours, तो ये दोनों टोटल टाइम कितने हैं 7, so we are having first equation as 30 upon x plus y 28 upon x minus y is equal to 7, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। in the same way we can develop case number 2, केस नंबर 2 अगेन इसी कॉन्सेप्ट से आप लोग ले सकते हैं, द टाइम फॉर अपस्ट्रीम, लेट अस टेक फर्स्ट डाउनस्ट्रीम, फॉर डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में कितना गया ये, इट इज रिटर्निंग मींस, सॉरी हियर वी हैव टेकन फॉर डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम को यहां पे दे रखा था 28, ये बाय मिस्टेक कर दिया, तो मेक इट 28 एंड दिस वन इज गिवन 30, so we are having 28 and 30. Here downstream is returning, so again 21 kilometers upon x plus y, and time for upstream, it is again 21 upon x minus y, so we are having these two equations, so as per the condition it will be 21 upon x plus y, this 21 upon x minus y will be equal to 5 hours, so this is 5, equation number 2. अगेन स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिड्यूसिबल फॉर्म है, दिस इज एग्जैक्टली, इट इज नॉट अ दिस इज रिड्यूसिबल फॉर्म, हम लोग यहां पे भी सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, लेट 1 upon x plus y be equal to u and 1 upon x minus y be equal to v, तो अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं। हमारी फर्स्ट इक्वेशन अब क्या बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 28 upon x plus y, x plus y को 1 upon x plus y को u मान रखा है, ये हो जाएगा 28u 30v is equal to 7, whereas second equation will be written as 21u 21v is equal to 5। इन दोनों को आप लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन लगाना चाहते हैं, और एलिमिनेशन लगा दीजिए, 28 एंड 21 को दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है तो उससे कर लीजिए, एलिमिनेशन करते हैं, तो हम लोग जैसे फर्स्ट इक्वेशन को विल मल्टीप्लाई, सो वी आर हैविंग 28 एंड 21, इफ यू गो विद द एलसीएम इट्स क्वाइट इजी, वी आर हैविंग 4 एंड 3 है, जो आप लोग करते हो उसी के हिसाब से बता रहा हूं, सो इट इज 12 into 7, so we are having 84, दोनों को 84 बनाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन by 3 and second equation by 4, so what do we get, when we multiply the first equation by 3 it becomes 384 then 2 84u, this becomes 90v is equal to 21, सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 8u 4 से मल्टीप्लाई किया, 84v 4 से मल्टीप्लाई किया 20, और दोनों को क्या करना है, एंड सब्ट्रैक्ट, सो एंड सब्ट्रैक्ट मीन चेंज द साइन, मैंने साइन चेंज कर दिया, ये कैंसिल है, इसको माइनस करोगे दिस इज कमिंग 6v, और ये कितना आ रहा है 1, तो v की वैल्यू हो गई 1/6, नाउ वी आर सब्स्टिट्यूटिंग, दैट इज वी कैन आल्सो राइट putting v in any one of the equation, मैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में रख देता हूँ, so 21u plus 21 and we can put in the first one, थोड़ा इजी रहेगा, हम लोग वहाँ रख लेते हैं, in the first equation it becomes 28u plus 30v, v is 1/6 is equal to 7, so this will get cancelled as 5, ये हो जाएगा 28u is equal to 5, if you take them it becomes 2, u will be 2/28 which is 1/14, so इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हमारे पास और भी वैल्यूज आ रही हैं, so therefore we can write 1/x plus y, ये कौन था, ये u था, u की वैल्यू 1/14 है,
1/14. It will give you another equation. Clear? And second one, 1/x minus y, which is actually v. v की वैल्यू 1/6 है. यहाँ से हमारे पास हो जाएगा x minus y is equal to 6. इनको सॉल्व कर लेते हैं. ये हमारी बहुत इजी सी छोटी छोटी दो इक्वेशंस हैं. इनको सॉल्व कैसे किया जाए? सो वी कैन गिव द नंबर्स एज वी हैव गिवन मेनी नंबर्स हियर 1 2. अब बाकी हमने दिए नहीं थे. रादर हियर वी कुड हैव रिटन ओके इट्स ऑलरेडी देयर. सो लेट मी राइट दिस वन एज थर्ड एंड फोर्थ. इनको सॉल्व करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू? एडिंग. लेट्स ऐड देम. सो एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, आप लोग का ये सॉल्यूशन आ जाएगा. x plus y is equal to 14, x minus y is equal to 6. When you add them, this will get cancelled. 2x equal to 20, x is equal to 10. If x is equal to 10, so third equation will become 10 plus y is equal to 14, y is equal to 14 minus 10, and 14 minus 10, it becomes 4. Therefore, speed of the boat in still water is, still water की speed क्या थी of the boat? It was x. We are getting 10. We are getting 10 kilometers per hour, and speed of the stream is 4 kilometers per hour. तो आप लोग क्या करो, पहले वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ें, मेक द इक्वेशन, देन डिसाइड वेदर इफ इट इज द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल सॉल्व कर दो, और नहीं तो ये रिड्यूसिबल फॉर्म बनेगी. रिड्यूसिबल फॉर्म को सब्स्टिट्यूट करो, और इस तरीके से आप लोग आपकी एनसीईआरटी की बाकी प्रॉब्लम्स को भी कर सकते हो. सो डू ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चंस, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो.